we have learned about the concept of DNA. The DNA कैसा structure है हमारा? DNA is a double helical structure, and this DNA, which is made up of nucleotides, these nucleotides, they are basically 4 in number. कौन से होते हैं? A, G, C and T. When I'm talking of these nucleotides which are arranged in the DNA, एक helical turn में मेरे total कितने DNAs और कितने nucleotide होते हैं? That are 10 in number. When I talk of a eukaryotic cell, I just say that this is a double-stranded DNA. Along with that, it is helical in nature. But when I go for a prokaryotic thing, I know this DNA, the prokaryotic DNA, is actually the circular DNA. The circular DNA, which is again having the double helix, and again then the nucleotides, they are always arranged in the base pair kind of a thing, in the form of base pair. The base pairs always are A pairing with T and G pairing with C. For a prokaryotic cell or a eukaryotic cell, DNA is not enough to make a protein. DNA should change into another genetic material, that is RNA. This RNA is going to have a coding sequence ताकि वो क्या बना सके? प्रोटीन बना सके. अब इस DNA और RNA में we set a difference कि जो मेरा RNA होता है that is made up of A, G, C and U. That means that instead of T, I have another nucleotide, that is uracil instead of AN. When for a prokaryotic DNA, RNA जब भी बनेगा तो वो RNA के अंदर जो सीक्वेंसेस होगी उनमें कोई भी इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं होगी. इंटरवीनिंग सीक्वेंस मतलब कोई फालतू सीक्वेंस नहीं है. जबकि अगर यूकैरियोटिक में देखें हम, यूकैरियोटिक के अंदर we have different sequences. We have exons and we have the introns. Exons वो जो हमारी काम की सीक्वेंसेस होती हैं और इंट्रॉन्स वो जो हमारे काम की सीक्वेंसेस नहीं होती. इन शॉर्ट जब हमारा न्यूक्लियोटाइड एक आरएनए सीक्वेंस बनेगी तो सारे एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? दे गॉट जॉइंड टुगेदर. अब ये एक एमआरएनए कहलाता है, एक मैसेंजर आरएनए कहलाता है. व्हाइल इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक आई टॉक ऑफ the base pairs of DNA, जो भी DNA की सीक्वेंस है वो एक नॉर्मल mRNA को फॉर्म करती है. अब इस mRNA की फॉर्मेशन के बाद इसके ऊपर अटैच होते हैं हमारे राइबोसोम्स. एंड ये राइबोसोम्स का काम क्या होता है? क्या फॉर्म करना? They result into the formation of protein. They help in the formation of protein. अब ये इतनी बड़ी सीक्वेंस है. लाइफ स्पैन प्रोकैरियोटिक सेल की ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 20 मिनट, 30 मिनट. उस 20 मिनट 30 मिनट में दिस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक डीएनए नीड्स टू कंप्लीट ऑल इट्स बेसिक थिंग, दैट इज ट्रांसलेशन. इट हैज टू फॉर्म द ट्रांसलेशन, undergo translation and result in the formation of a protein. Now we know that for a eukaryotic gene it is monocistronic. It is monocistronic. One gene coding for only one protein. But if I talk of this particular prokaryotic one, this prokaryotic DNA which forms the mRNA is now going to code for multi-proteins or multi-polypeptides. And for this we have the word known as polycistronic. Poly means many and mono means one. Cistron is the gene that codes for the protein. So now what is this? Why I have created such story for this lac-operon? Lac-operon actually is going to deal with all this thing, the process of translation, the process of the RNA formation, that is transcription. Then ये different कैसे हुआ?
ऐसी क्या चीज है जो हमने लैक ऑफ पेरॉन को अलग से पढ़नी है? दिस लैक ऑफ पेरॉन concept was actually given by the scientist Jacob and Monod. It was given by the scientist Jacob and Monod. इन्होंने क्या कहा था कि अगर ये मेरे डीएनए सीक्वेंस है जिसमें आरएनए बनाना है इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो मेरा आरएनए सीक्वेंस बनता है इसके अंदर सिर्फ एक जीन नहीं है, एक से ज्यादा जीन्स हैं। और ये एक से ज्यादा जीन्स जो हैं ये हमेशा इसको कोई ना कोई कंट्रोल करता है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल करेगा। और ओपेरॉन क्या होता है? ये एक बहुत सारे जीन्स का कॉम्बिनेशन है and this combination of genes is actually getting controlled by one of the factor, one of the inducer. कोई इंड्यूसर जब तक इसके पास नहीं लगेगा, कोई जीन इसको जब तक नॉक नहीं करेगी, गो एक पुश नहीं देगी गो फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस, तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब अगर मैंने इस इंड्यूसर को ही नहीं भेजा तो इसकी ट्रांसलेशन होने के चांसेस क्या है? खत्म है। यानी कि अगर मुझे कोई चीज को ट्रांसक्राइब करने के बाद ट्रांसलेशन करवाना है तो फर्स्ट थिंग मेरे पास क्या होना चाहिए? इंड्यूसर। एक बहुत बेसिक एग्जांपल आई विल गिव यू। आपके घर में अगर खाना बना हुआ है, ठीक है, सो अगर खाना बना हुआ है तो यू नीड नॉट मेक योर फेवरेट थिंग जो कि मैगी होती है। कोई मतलब ही नहीं आप मैगी बनाओगे अगर आपका फेवरेट खाना आपकी मम्मा ने ही बना रखा है। सो नाउ अगर आपकी मदर खाना ना बनाए, भूख लगी हुई है, व्हाट यू विल डू? सबसे बेसिक चीज है, आसान चीज है, किचन में गए मैगी बना दी। लेकिन अगर मम्मी ने कोई खाना बनाया हुआ है तो आप मैगी नहीं बना सकते, मम्मा ने ताला लगा दिया। तो मैगी या भूख क्या है? एक इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर जो है ये कब ऑन होता है? जब आपके घर में कुछ नहीं पड़ा। सो सिमिलरली इंड्यूसर, दिस ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन that gets transcribed and translated only when a inducer or a promoter thing actually acts on this particular gene. और translation तो जो for every gene you know, अगर ट्रांसक्रिप्शन करवानी है तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है मेरा प्रमोटर एरिया, the other thing that I have is the structural gene, the third thing that I'll have the terminator sequence. लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, when we are talking of this प्रोकैरियोट की केस में this is the promoter area, ये मेरा इंड्यूसर एरिया है। इंड्यूसर एरिया इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चरल जीन जो कि क्या करेगी? इनहिबिटर को क्या करेगी? कोड करेगी। आई फॉर इनहिबिटर। देन यू हैव अगेन अ प्रमोटर सीक्वेंस, फिर आती है आपकी एक ऑपरेटर सीक्वेंस, फिर आपके आते हैं तीन जीन दैट इज ZYA जीन। यहाँ अब एक बार यहाँ पे राइबोसोम लग गया, ये राइबोसोम क्या करेगा? इस इनहिबिटर जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एक ट्रांसलेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो ट्रांसलेशन प्रोडक्ट है वो एक इनहिबिटर है। दिस इनहिबिटर और यू कैन से रिप्रेसर, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करेगा इसके ऑपरेटर एरिया पे। यहाँ ऑपरेटर पे जाके इसने क्या लगा दिया? लॉक कर दिया। लॉक करने से अभी जो मेरा राइबोसोम था, ये राइबोसोम इन जीन्स को कोड नहीं कर पाएगा, इन जीन्स को कोड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इस मीडियम में डाल दूं लैक्टोज, अगर मेरे प्रोकैरियोट के पास ग्लूकोज है खाने के लिए, अल्टीमेटली व्हाट वी नीड और व्हाट एन एनिमल और अ प्लांट और एन बैक्टीरिया नीड, दे नीड ग्लूकोज,
रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लूकोज से ही सारी एनर्जी डिराइव होती है। तो व्हेन योर मदर हैज ऑलरेडी मेड अ फूड, तो आपको ये चीज, आपको मैगी बनाने की जरूरत नहीं है। You need not transcribe or translate this Z by AG. तो इन प्रोकैरियोट्स में जब तक आपके पास ग्लूकोज है, ये वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता जाएगा और ये ऑपरेटर को ताला लगा के रखेगा, ताकि देयर शुड बी नो ट्रांसलेशन ऑफ दिस थिंग्स। जब आपने मीडियम में, यू हैव दिस कल्चर मीडिया, एंड इन दिस कल्चर मीडिया आपने बैक्टीरिया ग्रो करे। जब तक आप इसको ग्लूकोज दे रहे थे, ये ग्रो होता जा रहा था, और ग्लूकोज के टाइम पे इन्होंने इन जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं करा, ट्रांसलेट नहीं करा। अब आपने क्या करा, इस मीडियम में ग्लूकोज डाला ही नहीं। What you have added is you have added an lactose. क्या ऐड करा आपने? लैक्टोज ऐड करा। Now when you add a lactose, ये लैक्टोज क्या करेगा? This lactose will bind on the repressor, या फिर इस रिप्रेसर को क्या करेगा? Don't go and lock the operator G. This is my lactose molecule. इस लैक्टोज ने इस ताले को पकड़ लिया है। जब ये ताले को पकड़ लेगा, दिस रिप्रेसर को पकड़ लेगा, तो ये मेरी राइबोसोम जो है इस ऑपरेटर रीजन पे पहुंचेगी और फाइनली इन तीनों जीन्स की क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगी, एंड इट विल फॉर्म द 3 प्रोडक्ट्स एज, जो जी जीन होती है, दिस जी जीन ट्रांसक्राइब्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन में क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो Y जीन है, Y जीन ट्रांसक्राइब करेगी परमिएज। Y जीन का काम क्या होगा? क्या सिक्रीट, क्या फॉर्म करना? परमिएज। और जो A जीन है वो ट्रांसक्राइब करने के बाद ट्रांसलेट करेगी ट्रांस एसिटाइलेज। जब तक लैक्टोज नहीं था, ये कोई भी जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो रही थी, बट वंस द लैक्टोज हैज कम इनटू द मीडियम, उसने रिप्रेसर को बाइंड करा, रिप्रेसर को अलाउ नहीं किया कि गो एंड बाइंड ऑन ऑपरेटर, और राइबोसोम ने अपना सारा काम कर लिया, और राइबोसोम ने ये 3 प्रोडक्ट बना दी। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट? जो मेरा लैक्टोज होता है, this lactose is actually made up of 2 things. One is glucose and another one is galactose. एक क्या है? ग्लूकोज, और दूसरा क्या है? गैलेक्टोज। अब जो मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, the work of this beta galactosidase is to break the lactose into glucose and galactose. जो मेरा परमीज एंजाइम होता है, उसका काम होता है जो मीडियम में ये लैक्टोज प्रेजेंट है, उसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना। यानी कि some amount of lactose is always present in the bacterial cell. कुछ अमाउंट, मे बी यू कैन से 0.001% तो पड़ा ही होगा, जो जब अगर बहुत ज्यादा, जब पॉपुलेशन लैक्टोज की बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये काम होने वाला है। तो ये लैक्टोज क्या करेगा? इसको बाइंड, इसकी परमिएबिलिटी को और इंक्रीज कर देगा। परमिएबिलिटी जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तब क्या होगा? देन ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप ट्रांस एसिटाइलेज है, ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? गैलेक्टोज को भी किसमें चेंज कर देगा? इनटू दी ग्लूकोज। यानी कि हमारे बैक्टीरिया ने खाना क्या है? इट हैज टू ईट दिस ग्लूकोज ओनली। Plant, animal, bacteria, they have to intake glucose only, but the way is different. So this lac operon or lactose operon का main काम क्या है? This operon is switched on only when lactose is present in the medium. When lactose is absent, then this inhibitor, it binds to the repressor protein. Simply, if I say, for a operon to work on, operon is a group of the genes joined together.
which get functional only when an inducer comes to it and leads to its translation. अगर इंड्यूसर नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, अगर इंड्यूसर है तो ट्रांसलेशन होगा. दिस इज ऑल द लैक ऑफ